السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے کافیہ ہے۔ ہم پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی عبارت کی ترکیب کریں گے۔ پہلے ترجمہ سماعت کریں۔ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک لفظ ہے۔ وضع، وضع کیا گیا ہے، لمعنى مفرد، ایک معنی مفرد کے لیے۔ اس کو اگر پڑھیں گے مفردن تو ہوگا ایک معنی کے لیے، اس حال میں کہ وہ مفرد ہو، اور اس کو اگر مفردن پڑھیں گے تو ہوگا کلمہ ایک لفظ مفرد ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے۔ جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو پھر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تین ترجمہ ہم نے کیوں کیا۔ وَهِيَ، اور وہ، یعنی کلمہ اسم، اسم ہے، وَفِعْلٌ، اور فعل ہے، وَحَرْفٌ، اور حرف ہے۔ یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب یہ تین قسمیں کیوں ہے، اس کی دلیل، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ وہ اما یا تو ان تدل، دلالت کرے گا، علی معنی، ایک معنی پر، فی نفسها، جو اس کے نفس میں ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ایک معنی مستقل پر، او لا، یا تو نہیں، یعنی یا تو معنی مستقل پر دلالت نہیں کرے گا۔ الثانی الحرف، اور دوسرا والا حرف ہے، یعنی جو معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا ہے اس کو حرف کہیں گے۔ والاول، اور پہلے والا، اما یا تو یقترن، ملا ہوا ہوگا، باحد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانہ میں سے کسی ایک کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ معنی مستقل یا تو ملا ہوا ہوگا، او لا، یا تو ملا ہوا نہیں ہوگا۔ الثانی، یعنی اگر معنی مستقل تینوں زمانہ کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو الثانی الاسم، وہ اسم ہے، والاول الفعل، اور پہلے والا فعل ہے۔ اس کے بعد ہے وقد علم، اور تحقیق کے جان لیا گیا، بذالک، اس کے ذریعے یا اس سے، حد کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی تعریف، یعنی ان میں سے ہر ایک کی تعریف اسی سے معلوم ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ الکلمۃ لفظ، الکلمۃ کو بنائیں گے مبتدا، لفظ کو بنائیں گے ہم موصوف، اس لیے کہ لفظ کے بعد ایک جملہ ہے، وضع لمعنى مفرد، اور جملہ کا حکم یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتا ہے، اور یہاں پر اس عبارت میں الکلمۃ لفظ میں لفظ بھی نکرہ ہے، تو جب اس کے بعد ایک جملہ ہے، یہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو صفت بنائیں گے، اس لیے یعنی لفظ کو موصوف قرار دیں گے اور یہ جملہ صفت بنے گا۔ آگے دیکھیے، لفظ موصوف، وضع فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا نائب فاعل، لام حرف جار، معنی موصوف مفرد صفت، معنی موصوف مفرد صفت سے مل کر مجرور، اس کے بعد لام حرف جار کا، اس کا لام حرف جار کا مجرور، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو کہیں گے ظرف۔ اور یہ کون سا ظرف ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا، ظرف لغو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا متعلق وضع فعل مذکور ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے لام حرف جار، معنی موصوف مفرد صفت، معنی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، وضع فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر اس کو کہیں گے صفت، کس کی؟ لفظ موصوف جو ہم نے بنایا تھا اس کی صفت۔ تو لفظ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، الکلمہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک ترکیب تو یہ ہوئی، اور ایک ترکیب یہ کر سکتے ہیں، لفظ مفرد، یعنی مفرد کو لفظ کی صفت قرار دیں گے، تو ایسی صورت میں وضع لمعنى، اس کو کہیں گے صفت اول، اور مفرد کو صفت ثانی، لفظ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر پھر اس کو خبر قرار دیں گے، الکلمہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور اگر اس کو کہیں گے مفردن تو ایسی صورت میں مفردن کو حال بنائیں گے،
इसको या तो वुदिया में जो हुआ ज़मीर है उस हुआ ज़मीर का हाल करार देंगे, तो हुआ ज़मीर को कहेंगे जुलहाल और मुफरदन को हाल। जुलहाल अपने हाल से मिलकर वुदिया का नाइब फ़ाइल। या तो मानन में जो मानन इसमें मफ़ूल का सिगा है, तो इसमें जो हुआ ज़मीर है उस हुआ ज़मीर को जुलहाल करार देंगे और मुफरदन को हम हाल करार देंगे। तो मानन में जो हुआ ज़मीर है वो जुलहाल, मुफरदन हाल। मानन की ज़मीर जुलहाल अपने हाल से मिलकर फिर मानन का नाइब फ़ाइल, मानन इसमें मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर उसके बाद इसको कहेंगे मजरूर। लाम हर्फ जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व, वुदिया फ़ेल अपने फ़ाइल अपने नाइब फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर फिर इसको सिफ़त करार देंगे। तो समझ गए होंगे। उसके बाद है वाहिया इस्म, वाहिया यानी और वो। वाव को हम इसको इब्तिदाइया भी कह सकते हैं और इसको इस्तिनाफ़ के लिए भी कह सकते हैं। यानी शुरू में जो वाव आए उसको हम हर्फ इब्तिदाई या हर्फ इस्तिनाफ़ कहते हैं। तो वाव इब्तिदा या इस्तिनाफ़ के लिए। हिया मुब्तदा, इस्मुन इसको कहेंगे मातुफ़ अलई, वाव उसके बाद इसको कहेंगे हर्फ अत्फ़, फ़ेइलुन मातुफ़ वाव हर्फ अत्फ़, उसके बाद हरफुन ये भी मातुफ़। तो इसमें इस्मुन मातुफ़ अलई अपने दोनों मातुफ़ से मिलकर फिर इसको कहेंगे ख़बर। हिया मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। उसके बाद है लिअन्नहा, लिअन्ना में लाम हर्फ जार, अन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल मौसूल हर्फी। तीन मौसूल हर्फी होते हैं, एक अन्ना, एक अन, एक मा। तो ये अन्ना है, इसको हम मौसूल हर्फी कहेंगे। क्यों? मौसूल हर्फी अपने सिला से मिलकर मुफ़रद के हुक्म में होता है, इसलिए हम इसको मौसूल हर्फी कहते हैं। हा अन्ना का इस्म, इम्मा हर्फ तरदीद, इसलिए कि या तो ये होगा या तो वो होगा, तो ये तरदीद के लिए आता है, इसको कहेंगे इम्मा हर्फ तरदीद। अन ये हर्फ नासिबा है, तो ये अन भी मौसूल हर्फी होता है, अन हर्फ नासिबा मौसूल हर्फी। तदुल्लु ये फ़ेल मुज़ारे सिगा वाहिद मुअन्नस गायब, इसमें हिया ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल। अला हर्फ जार मानन, इसको हम कहेंगे मौसूफ़ कहेंगे। क्यों? इसके बाद देखिए फ़ी नफ्सिहा जो है ये उसकी सिफ़त बनेगी, ये उसकी सिफ़त है, तो इसलिए मानन को हम कहेंगे मौसूफ़। फ़ी हर्फ जार नफ्सी मुज़ाफ़, हा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर, फ़ी हर्फ जार अपने मजरूर से मिलकर इसको कहेंगे ज़र्फ़ मुस्तक़र। किसका? साबितिन इसम फ़ाइल, साबितिन इसम फ़ाइल मुक़द्दर यह मानेंगे। तो साबितिन इसम फ़ाइल उसमें हुआ ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल और वो इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर फिर मानन की सिफ़त, मानन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मजरूर अला हर्फ जार का, अला हर्फ जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व तदुल्लु फ़ेल का, तदुल्लु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर इसको कहेंगे मातुफ़ अलई। आओ हर्फ अत्फ़ ला, ला के बाद एक पूरा जुमला यानी ला तदुल्ला, और ला तदुल्ला पूरा जुमला है तो वो पूरा जुमला बनेगा मातुफ़। तो ये जुमला पूरा जुमला मातुफ़ अलई जिसको हमने बनाया था मातुफ़ अलई अपने मातुफ़ से मिलकर इसको फिर हम कहेंगे अन मौसूल हर्फी का सिला, अन मौसूल हर्फी अपने सिला से मिलकर फिर इसको हम करार देंगे अन्नहा में जो अन्ना हा को हमने इस्म बनाया था तो इसकी हम ख़बर कहेंगे। तो अन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर फिर इसको कहेंगे सिला। वो अन्ना को जिसका हमने मौसूल हर्फी कहा था, अन्ना मौसूल हर्फी अपने सिला से मिलकर फिर इसको कहेंगे मजरूर। लाम हर्फ जार का, लाम हर्फ जार अपने मजरूर से मिलकर फिर इसको कहेंगे ज़र्फ़। अब इस ज़र्फ़ का मुताल्लक़ यहाँ मज़कूर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर एक मुताल्लक़ निकालना पड़ेगा, उसको हम मुनहसिरतुन निकल सकते हैं। और मुनहसिरतुन वो एक सिर्फ़ मुनहसिरतुन जुमला नहीं बन सकते, इसलिए हम इसको हिया मुनहसिरतुन कर सकते हैं या इन हसरत फ़ेल निकल सकते हैं। अगर इन हसरत फ़ेल निकालेंगे तो फिर हमें एक लफ्ज़ निकालना काफ़ी है, और अगर
मुनहसिरतुन निकालेंगे तो हिया मुनहसिरतुन अला सलासति अक़साम निकलना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में मुनहसिरतुन का ये ज़र्फ़ मुस्तकर बनेगा। मुनहसिरतुन इसमें फ़ाइल, उसमें हिया ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल, और अला सलासति अक़साम को हम मुनहसिरतुन का ज़र्फ़ लग करार देंगे और ये तो ज़र्फ़ मुस्तकर बन गया। और हिया मुब्तदा अपने, तो फिर हिया मुब्तदा मुनहसिरतुन अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग और ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर फिर इसको ख़बर करार देंगे, और हिया मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर फिर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनेगा। उसके बाद अस्सानी अल हर्फ़ु, अस्सानी को मुब्तदा करार देंगे, अल हर्फ़ु ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। वल अव्वल में वाव को हर्फ़ अत्फ़ कह सकते हैं या हर्फ़ इब्तिदा कहिए या इस्तेनाफ़ कहिए। उसके बाद अल अव्वलु ये बनेगा मुब्तदा, इम्मा हर्फ़ तरदीद, उसके बाद अन मौसूल हर्फ़ी नासिबा, अन नासिबा मौसूल हर्फ़ी बनेगा। यक़्तरिना ये फ़िल मुज़ारे सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल। बा हर्फ़ जार अहदी मुज़ाफ़, अल आज़मिनती सलासा ये मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह। अहद मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर जार मजरूर से मिलकर इसको कहेंगे ज़र्फ़ लब। यक़्तरिना फ़ेल का, यक़्तरिना फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लब से मिलकर फिर इसको कहेंगे मातुफ़ अलैह। आओ हर्फ़ अत्फ़ ला के बाद पूरा एक जुमला, आओ ला यक़्तरिना बि अहदिल आज़मिनती सलासा है, वो पूरा जुमला बनेगा मातुफ़ अलैह अपने मातुफ़ से मिलकर फिर इसको कहेंगे अन मौसूल हर्फ़ी का सिला, अन मौसूल हर्फ़ी अपने सिला से मिलकर फिर इसको कहेंगे ख़बर किसकी, अल अव्वलु मुब्तदा की, अव्वलु मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। अस्सानी अल इस्मु, अस्सानी मुब्तदा अल इस्मु ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वल अव्वलु अल फ़ेल, और पहले वाला फ़ेल है तो वाव हर्फ़ इस्तिनाफ़ और अल अव्वलु मुब्तदा अल फ़ेलु ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। उसके बाद है वक़द उलिमा बिदालिका हद्दु कुल्ली वाहिद मिनहा, तो इसकी तरकीब वाव हर्फ़ इस्तिनाफ़, क़द उलिमा ये माज़ी क़रीब है, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा इसका नाइब फ़ाइल, बा हर्फ़ जार, दालिका मजरूर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग, हद्दु मुज़ाफ़, कुल्ली मुज़ाफ़ इलैह होकर मुज़ाफ़ किसका, वाहिदिन की तरफ मुज़ाफ़, वाहिदिन इसको कहेंगे मुज़ाफ़ इलैह लेकिन इसको मौसूफ़ करार देंगे, क्यों, मिनहा इसकी सिफ़त है, मिन हर्फ़ जार हा मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर इसको कहेंगे ज़र्फ़ मुस्तकर किसका, साबितिन मुक़द्दर निकालेंगे, साबितिन इसमें फ़ाइल उसमें हुआ ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर सिफ़त वाहिदिन मौसूफ़ की, वाहिदिन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह, कुल्ली मुज़ाफ़ का, कुल्ली मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर हद्दु मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह, हद्दु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर उलिमा का नाइब फ़ाइल, उलिमा फ़ेल अपने नाइब फ़ाइल और ज़र्फ़ लब से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। तो उम्मीद है आपको तरकीब भी समझ में आ गई होगी।